ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ যে ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਟਰ 16 ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਰਸਸ ਨੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਰਸਸ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਧੱਕਾ ਸੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਕੰਚਨ ਆਏ ਔਰ ਸੋਪ ਪਿਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। जिंदाबाद कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो टर्मिनेशन रद्द करो टर्मिनेशन रद्द करो। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਏ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਸ 2008 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਣਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਘਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 178 ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਤੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਨੂੰ। 8 ਸਾਲ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 10,000 ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। मैं मीडिया सेक्रेटरी हूँ एनएचएम से। हमारी जो मेन मुख्य मांग थी, हमारी बेसिक मांग थी कि समान काम समान वेतन हमें दिया जाए। ये लड़ाई हमारी 2013 से चल रही थी, जो कि हमारी ये डिमांड थी। तो हमने क्या किया, जो पिछले महीने अपने सितंबर के महीने हमारा ये बजट पास हुआ था कि तुम्हें समान काम समान वेतन नहीं मिल सकता, परंतु जो यहाँ में चंडीगढ़ में मिनिमम वेजेस हैं उनके बराबर आपकी सैलरी की जा सकती है। ये आपके लिए ये बजट है। उसके लिए हमारा बजट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पास भी किया, परंतु अब नए डीएचएस और नए एचएस के आने के बाद इन्होंने क्या किया कि अगर आपको ये बढ़ी हुई सैलरी चाहिए, जैसे मान लीजिए स्टाफ नर्स की सैलरी एनएचएम में 12,000 है और वहाँ डीसी रेट वाले की जो आउटसोर्स पॉलिसी है उसमें जो है 30,000 रुपये है। तो इन्होंने बोला अगर आपको 30,000 रुपये सैलरी चाहिए तो आपको ये सेवा और शर्तें जो आपकी है वो आप पे जो है सारी लागू होगी, जो कि एक आउटसोर्स एम्प्लॉय की होती है।
एक्चुअली सर हम जो है आउटसोर्स एम्प्लॉय नहीं है, हम एनएचएम में भर्ती हुए हैं। हमारा बाकायदा इंटरव्यू हुआ, रिटर्न टेस्ट हुआ, एक प्रॉपर जैसे पक्के बंदे के लिए या पक्के कर्मचारी के लिए जो भर्ती होती है वही वाले प्रोसीजर हम इसमें भर्ती हुए हैं। तो कम से कम 10-15 साल यहाँ पे जो है हमें जॉब करते हुए हो गए, और सारे बंदे जो है यहाँ पे जो कोविड काल में भी जॉब किए, हर जगह जॉब की, हमने अच्छे ढंग से काम को निभाया है। और दूसरी बात हमने यही मांग की थी उसी टाइम पे कि हमारी जो सैलरी है, हमारी बहुत कम सैलरी है, लीड सैलरी हमें चंडीगढ़ में मिल रही है, जबकि पंजाब का जो एनएचएम कर्मचारी चंडीगढ़ में जॉब कर रहा है उसको डीसी रेट दे रहे हैं चंडीगढ़ का। जब उसको डीसी रेट एनएचएम में दे रहे हैं तो हमने इसी बेस को बना के हमने कहा कि हमें भी यहाँ पे जो है इनके बराबर सैलरी कर दो। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आपने ये डिमांड की थी कि डीसी रेट चाहिए आपको, वो डिमांड हमने कभी नहीं की, क्योंकि उस डिमांड के लिए एक्स डीएचएस दीवान सर थे, उन्होंने हमें 2018 में ऑप्शन दिया था कि आप आउटसोर्स ज्वाइन कर लो। हमने जब उस समय नहीं लिया 2018 में ये डीसी रेट वाली पॉलिसी, तो अब हम क्यों इस पॉलिसी को अपनाएं? तो इसलिए उन्होंने हमें दबाव बनाया और इन्होंने सिर्फ 5 दिन का हमें अल्टीमेटम दिया, अगर आपने 5 दिन के अंदर इसमें साइन कर दिए तो आपको डीसी रेट की नियम और शर्त के हिसाब से यहाँ पे जो ये पैसे मिलेंगे। 5 दिन कब से शुरू हो रहे हैं? वो 5 दिन सर इन्होंने 26 तारीख को ऑर्डर पास किए, जो कि जो है 31 तारीख को जो है वो 5 दिन अपने पूरे हो जाए। ठीक है जी। तो हमने आनंद फानन में हमने फिर नोटिस दिया, हमने कहा हमें मीटिंग चाहिए, तो हमारे पहले दिन मीटिंग नहीं मिली। अगले दिन जब हमने 24 घंटे का नोटिस दिया फिर इन्होंने हमें मीटिंग दी। तो जब हमने 24 घंटे दिया फिर उन्होंने मीटिंग दी, तो उसके बाद हमने मीटिंग हुई डीएचएस साहब से, तो डीएचएस साहब ने बोला कि आपको ये चीज़ रोल फॉलो करने ही पड़ेंगे, अगर आप विलिंग नहीं हो, अगर आपको ये पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करनी है तो आप जो है आपको ये पैसा नहीं मिल सकता है, ये पैसा आपका लैप्स हो जाएगा। फिर हमने जो है नोटिस कर दिया कि मैडम ठीक है, हमने अल्टीमेटम दे ही रखा है, आपने जो अगर हमारे 24 घंटे के अंदर बात नहीं सुनी तो हम हड़ताल पे चल जाएंगे। तो सर हम 28 तारीख को जो हम यहाँ पे हड़ताल पे आ गए थे। लिखती ऑर्डर है आपके पास? लिखती ऑर्डर सर हमारे पास। और मजे की बात ये देखो कि जो मेडिकल लीव पे थे उनका भी टर्मिनेशन ऑर्डर निकाल दिया, जो नाइट ड्यूटी करके अपने घर में सो रहे थे उनका भी टर्मिनेशन ऑर्डर निकाल दिया। मतलब ये ऑर्डर, ये टर्मिनेशन करने की इतनी हड़बड़ाहट क्यों थी, ये मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को पूछना चाहता हूँ कि कहीं ये चाल तो नहीं कि ये आउटसोर्स को प्रमोट करने के लिए जो है सरकारी जो डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, जैसे हम एनएचएम में लगे हुए हैं, तो हमारे जो रूल और रेगुलेशन है वो जो हमारे हैं, हमें छुट्टियाँ मिलती है और हमारे जो मतलब मेडिकल लीव मिलती है, ये सारी चीज़ें ये जो है ख़त्म करना चाहते हैं। और बेसिकली मैं तो यही कहूँगा, अगर उन्होंने ये फरमान जारी किया है तो मुझे तो यही लग रहा है ये जो है आउटसोर्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ये जो है अभी व्यवस्था के लिए आउटसोर्स से कर्मचारी को यहाँ पे ला रहे हैं, ठेकेदार के थ्रू यहाँ पे भर रहे हैं बंदे को। अब मजे की बात देखो, अगर यहाँ पेंडेमिक पड़ा हुआ है, एचएस साहब कह रहे कि डेंगू पीरियड में आपने ये काम किया, स्ट्राइक पे नहीं जाना था, लेकिन हमने 1.5 साल तक तो हमने ये पेंडेमिक में काम किया। हमें खुद कोविड हो रखा है, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब को, सबको जो है जितना फीमेल स्टाफ है सबको यहाँ पे कोविड होकर हटा है। हमने जी जान से अपना यहाँ पे काम किया है, इन्होंने हमें सर्टिफिकेट भी दिए हैं और सारा कोरोना वॉरियर भी दिए, फूल भी बरसाए हैं, ताली भी बरसाई है, सारा कुछ तो इन्होंने किया, खुद ही किया। और आज हमें दिवाली के तौर पर इन्होंने निकाल दिया। तो ये कहाँ का इंसानियत है? हम 12-12 घंटे जॉब करते हैं, काम करने से हम नहीं डरते हैं। ये कह रहे हैं कि 8 घंटे का ये बहाना लगा रहे हैं हम पे, लेकिन हम काम करने से नहीं डरते हैं। आप एचएस साहब को पूछ सकते हैं कि हम नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग भी करते हैं, जो कि 12-12 घंटे की होती है। जब हम 12 घंटे की जॉब कर सकते तो 8 घंटे नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें जो है हमारा हनन हो रहा है, ये डायरेक्टली एक डीसी रेट के अंदर हमारा ये सारा कुछ काम आ जाएगा, जो कि एक आउटसोर्स वाली पॉलिसी आ जाएगी। डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमारा जो है सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, एनएचएम से हमारा कोई सिस्टम की रणनीति क्या आपकी है? 5 बंदे बैठे थे, आज 4 बंदे बैठे हैं। कल से हमने अभी अल्टीमेटम दे दिया है, कल से हम यहाँ पे मरण वर्त के लिए बैठ रहे हैं। ये हम आपके द्वारा ऐलान कर रहे हैं। धन्यवाद। बड़ी हैरानी की गल हैगी है कि ये वही डॉक्टर ने जिन्हों ने कोरोना काल दे विच अपनी जिहड़ी हैगी जीन जान ला के लोगों को बचाया, तो इन्हों के फुल बरसाए गए सी कि इन्होंने बड़ा चंगा काम किया है, क्योंकि सारी दुनिया जिहड़ी सीगी उस टाइम अंदर सी। एक डॉक्टर यह तबका सीगा जिहड़े बिल्कुल बाहर लोगों की सेवा के लगे हुए सीगे, हस्पताल जिहड़े हैगे परे भी सी लोकां मरीज़ां दे नाल, पर उन्हां दे नाल जिहड़ा इस टाइम धक्का सरेआम हो रहा है। वो तुसीं देख सकते हो गल्लां दे विच ये भी निकल के सामने आई है कि जिहड़ा आउटसोर्स हैगा उहनूं प्रमोट करने वास्ते भी जिहड़े हैगे इहो जिहे फैसले लए जांदे ने सरकार वालों, क्योंकि ये डॉक्टर वो ने जिहड़े प्रॉपर जिहड़ा रूल फॉलो करके आते हैं, प्रॉपर चैनल के नाल आते हैं, पर इन्हां दे नाल जिहड़ी ये एक धक्केशाही हैगी है वो की जा रही हैगी। प्रशासन का की कहना है, ये प्रशासन जानता है वो धक्केशाही क्यों कर रहा, पर हाले लगातार इनकी जी हैगी भुख हड़ताल सीगी वो खत्म की इन्होंने वालों। तो हुण जिहड़ा हैगा अगली रणनीति है कि मरण वर्त बैठणगे, पर यह बड़ी शर्मनाक गल हैगी है साडे देश वास्ते, साडे जिहड़ा इन्हां प्रशासन वास्ते कि जिहड़े लोग जान बचाउण वास्ते अगे आते हैं उन्हां नूं ही मरण वर्ते अपने जिहड़े हैगे ने हक्कां वास्ते लड़ना पैंदा। कैमरामैन हंदन दे नाल मैं जगजीवन मीत, चंडीगढ़।